हेलो विद्यार्थी मित्रों, अनिल ज्ञान मंदिरनी यूट्यूब चैनल पर आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है। आजना अपना आ शैक्षणिक पर्वनी अंदर धोरण 6 में हिंदी विषयनी अंदर આપણે આજે એક નવા પાઠનો વિડીયો બધાએ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો તમને બધાને ખબર છે કે અત્યારનો યુગ કયો છે, તો કે આધુનિક યુગ છે, બરાબર ને। કોઈ પણ કાર્યની અંદર આધુનિકતા આવી જાય તો એ કાર્ય વધુ સરળતાથી વધુ સારી રીતે તમે કરો છો। તમને ખબર છે કે અત્યારના આધુનિક યુગની અંદર તમે જોજો કે કઈ સિસ્ટમ વધારે પડતી અત્યારે ફોલો થાય છે, તો કે કોમ્પ્યુટર, બીજી તો કે મોબાઈલ। હવે તમે બધા અત્યારે ઓનલાઈન જ વર્ક કરો છો, બરાબર ને। તો પહેલાંના સમયની અંદર શું હતું કે મોબાઈલ નહોતા, કોમ્પ્યુટરનું એટલું બધું વધુ પડતું ચલણ નહોતું, તો બધા કેના દ્વારા પોતાનું કાર્ય, એકબીજાની માહિતી, એકબીજાની જાણકારી છે એ આપતા મેળવતા। તો હા, તમને બધાને તરત યાદ આવી ગયું હશે કે પત્ર દ્વારા। તો પત્ર દ્વારા તમે જે માહિતી એકબીજાને પહોંચાડો છો, તો એ જ વાત આપણા આ પાઠની અંદર છે, પુસ્તક હમારી મિત્ર, બરાબર। તો પુસ્તક દ્વારા, પુસ્તકની અંદર તમને ખબર હશે કે ઘણા બધા પત્ર હોય છે, ઘણી બધી જાણવા જેવી વાત હોય છે, ઘણી આધુનિક વાત હોય છે, એ બધી વાત આપણે આમાં જોવાની છે। પુસ્તકમાં જે જ્ઞાન છે, બરાબર, એનાથી વધુ ઉપરનું જ્ઞાન આપણે મેળવવું હોય તો અત્યારનો યુગ એટલે કે કોમ્પ્યુટરનો યુગ, અને એની સાથે આપણે તાલ મિલાવી અને જાણીએ છીએ। તો પાઠનું નામ છે પાઠ 4, પાઠનું નામ છે પુસ્તક हमारी मित्र। जीवनની અંદર એટલે કે લાઈફની અંદર जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। જીવનની અંદર વિશેષ એટલે કે ખૂબ જ મહત્વ એટલે કે એક અગત્યનું સ્થાન હોય તો એ છે, पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। ताजगी, पत्र द्वारा जब हम पत्र किसी का पढ़ते हैं तो हमें उस पत्र को पढ़ते ही हमारे जीवन के अंदर नवीनता, कोई नई बात हमें मालूम पड़ती है, और जीवंतता, हमें ऐसा लगता है कि सामने जीवंत व्यक्ति हमारे खड़ा है, ऐसा हमें फील होता है। जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। व्यापाરની અંદર પણ પત્ર દ્વારા તમે કોઈ કાર્ય કરતા હોય, કોઈ વસ્તુ મંગાવી હોય તો પત્ર દ્વારા પણ તમે મંગાવી શકો છો। તો પત્ર છે એ ખૂબ મહત્ત્વનો છે, એટલે જ નામ અહીંયા આપ્યું છે, પુસ્તકમાં જે પત્રનું મહત્ત્વ છે। પહેલાંના સમયની અંદર આપણે એકબીજાને, તમે જોજો, એક પક્ષી દ્વારા એકબીજા સુધી મેસેજ મોકલતા હતા, તો એ તમને બધાને ખબર હશે। અને એ છે એક જે કબૂતર દ્વારા, અને એ જે પત્ર લઈ જાય છે અને બીજે સ્થળ સુધી એ સમાચાર મોકલાવે છે, પહોંચાડે છે। तो અહીંયા આ જ વાત કરી છે, પુસ્તક हमारी मित्र। तो इसके साथ साथ ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है, बराबर। फैक्स, તમને ખબર છે કોમ્પ્યુટરના યુગની અંદર બધું વસ્તુ અત્યારના સમયની સાથે આધુનિકતા આવેલી છે। તો ફેક્સ છે, પછી તો કે મેલ કરીને, તો ઇન્ટરનેટ દ્વારા આ બધી માહિતી આપણે એકબીજા સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ। મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એટલે કે મુખ્ય ધ્યેય એ રહ્યો છે પત્રનો। તો यहाँ पर भी एक पत्र है, मनोज को लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। किस बारे में पत्र लिखा है, कौन सा पत्र किसे लिखा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो पत्र लिखते हैं उसका कहने के ठिकाना, उसका सरनामो એટલે કે એનું એડ્રેસ, જે સૌ પ્રથમ તો પહેલાં કે જે તમે જે મોકલો છો એ ખાસ કે ઉમિયાનગર સોસાયટી મુન્દ્રા, એટલે કે જે કચ્છ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે તેની વાત કરી છે। તારીખ, કઈ તારીખે લખો છો, તો કે 4/8/2011। તમે ધારો કે બીજી તારીખે લખતા હોય તો તમે એ તારીખ દર્શાવી શકો છો। પ્રિય મનોજ, બરાબર, મનોજને લખે છે એટલે કે છે પ્રિય મનોજ, નમસ્તે। સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરીએ તો હાય હલોથી જ કરીશું, એટલે કહે છે કે નમસ્તે। मैं यहाँ सुकुशल हूँ, એટલે કે मैं यहाँ सही ठीक ठाक हूँ, इसलिए यह बात की है। आशा है कि वह सभी कुशल में से होंगे। पिछले कई दिनों से
तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही है। वांचे गुजरात अभियान द्वारा बराबर सही और गलत की जो बात की गई है उसके बारे में हमने यही कही पिछले कई दिनों में એટલે કે कई दिनों से पहले की बात की है। लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला એટલે કે स्कूल निशाळ हमारी जे शाळा છે તેની વાત કરી છે। हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत एक अभियान चालू है, एનું नाम છે वांचे गुजरात। इस बारे में प्रवृत्ति એટલે કે એના વિષયની જે પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે તેની વાત એક કરે છે। अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, एक सूत्र लिखा था, उसके बारे में कहता है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पुस्तक के मित्र, पुस्तक जो ज़्यादा पढ़ते हैं उसे कई ज़्यादा जानकारी की प्राप्ति तो होती ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो नहीं मालूम वो उसके माध्यम से हमें मालूम हो सकता है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया है, पुस्तक के मित्र वो हमारे भी मित्र। तो एक बात यहाँ पर की गई है, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबों એટલે કે પુસ્તકોનું મહત્વ શું છે એના વિશે તને લખી અને જણાવી રહ્યો છું। એમ કહે છે किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का एवं अन्य भले बुरे का सच्चाई क्या है झूठ क्या है उसकी जानकारी हमें ये किताबों द्वारा मिलती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करता है। साबुन तमने खबर है कि जब हम स्नान करते हैं तब साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर अथवा તમે એમ પણ કહી શકો કે જો આપણે એમ કહેતા હોય કે કપડાં ધોવા હોય તો સાબુ દ્વારા આપણે એ કપડાં છે ધોઈએ છીએ ત્યારે કપડામાંથી મેલ જેમ નીકળી જાય છે, उसी तरह हमारे शरीर पर से जो मैल साबुन का कार्य करता है। हम जब नहाते हैं तब साबुन का इस्तेमाल करते हैं और सारा मैल धुल जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी पुस्तक के द्वारा हमारे भीतर का सारे मैल दूर हो जाते हैं, ऐसी बात कही है। पूज्य गांधी जी ने कहा था पुस्तक के मन के लिए साबुन का कार्य करता है। मन में है जो अज्ञात है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। इसलिए उसने कहा है किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिसमें जिज्ञासा की पूर्ति होती है, जिसमें जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। ज्ञान और विज्ञान એટલે કે આધુનિક યુગની અંદર વાત કરી છે સાયન્સની, उसे अभी आधुनिक लगती है। किताबें मूल्यवान है, मूल्यवान એટલે કે कीमती છે, बराबर એટલે કીધું છે किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्रों में ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए, मुझे पैसा नहीं लेकिन पुस्तकें चाहिए, क्योंकि पैसे तो आज है और कल नहीं खर्च हो जाएंगे, लेकिन पुस्तकें वैसे की वैसी हमारे पास रहेंगी और उसका ज्ञान हम जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि मुझे पैसे की नहीं, मुझे किताबों की ज़रूरत है। पुस्तकें हमारे मित्र है और रहेंगी, इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जिम्मेदारी એટલે કે આ એક હોદ્દો એ બધાનો છે, એટલે કે सभी की ये जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी आशा हूँ એવું માનું છું કે તમે પણ આ રીતે કિતાબ એટલે કે પુસ્તક પઢશો અને તમારું જે કાર્ય છે એ સારી રીતે કરી શકશો। કિતાબ દ્વારા ચોપડી દ્વારા તમે ઘણું બધું જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત કરી શકો અને એના માધ્યમ દ્વારા તમે તમારા જીવનનું એક ધ્યેય છે એ પણ આગળ લાવી શકો છો। તો इस पाठ के द्वारा पुस्तकें हमारे मित्र साथी
तो कौन है? तो कि पुस्तकें। उनके द्वारा हमें हमारे जीवन में कई ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। कई तरह की किताबें मिलती हैं और इस समय तो हम देखेंगे कि हर क्षेत्र की, हर विभाग में, हर जानकारी के बारे में किताबें मिलती हैं, जिससे हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों को जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाओं के साथ किताबें की मूल्यवान भेंट देंगे। चलो એટલે કે चलिए हम आज से ही આપણે આજથી જ સંકલ્પ કરીએ। શું સંકલ્પ કરવાની વાત કરી છે? हम आज से ही संकल्प करें कि दोस्तों को, हमारे मित्रों को पुस्तकें भेंट के रूप में, सौगात के रूप में दे, ताकि वो उस किताब के द्वारा कई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसकी जानकारी ज़्यादातर बढ़ा सकते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख भी सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे એટલે એ કિતાબ કેટલી મૂલ્યવાન, કેટલી કિંમતી છે એ આપવાની વાત અહીંયા કરી છે। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बुके नहीं पर बुक चाहिए, परिवार को मेरा प्रणाम। मुझे अब किसी को जब जन्मदिन पर बुके नहीं देना है, लेकिन बुक देनी है और बुक के द्वारा उसे उसके सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो खास यह बात भी हमें सोचनी चाहिए। बुके देने पर क्या घड़ी पल दो पल सही लगेगा, फिर ऐसा ही बुके पड़ा रहेगा, उसका कोई काम के लिए नहीं लेंगे। लेकिन किताबें जब भी कभी हम पढ़ ले, हमारे बाद कोई और भी उसका इस्तेमाल करके उसके जानकारी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम भी चाहेंगे कि जैसे हम किताबों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई ज्ञान का संचार प्राप्त होगा और हम इस जीवन में कई जानकारी के बारे में भी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि पुस्तकें हमारे मित्र हैं। उसी के साथ पुस्तकें, तुमने आपको पता ही होगा कि जब हमारे ज़माने में, पहले के ज़माने की बात और थी, बराबर, पहले के ज़माने की बात और थी, तब पुस्तकें और पत्र के द्वारा एक दूसरे की ज़रूरत, मांग और एक दूसरे की जानकारी उसे देते थे। लेकिन आज का ये आधुनिक युग में पत्र द्वारा कोई ऐसी बात हो तभी पत्र का इस्तेमाल होता है, वरना इंटरनेट, फैक्स और ईमेल द्वारा ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि फ़ोन, जब जिसके पास देखो फ़ोन तो नॉर्मल हो गया है, सभी के पास पाया जाता है और जानकारी मिल सकती है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समय मोबाइल का और कंप्यूटर का कितना महत्व है, तो इस बारे में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें यह ज्ञान भी मिल सकता है कि पुस्तकें हमारे मित्र है, तो पुस्तकों के बारे में जितनी ज़्यादा हो हम बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कोई भी किताबें आपके हाथ में आए तो उसे ज़रूर पढ़िए, उससे ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करिए और आपके द्वारा जो जानकारी दूसरी व्यक्ति को मिलेगी उसके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार पुस्तक हमारे लिए कितनी ज़रूरी है उस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमारे जीवन को इस तरह आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।